اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. کہاں تک ہو گیا تھا یہ؟ ومنہا فقط تین لائنیں پڑھی تھی. ومنہا ما ذکرہ صدر المتألہین فی کتبہ وہو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل الشائع فالثانی یوجبہ دون الاول. بات ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کے جواب میں. پہلے دو اعتراض جو بیان ہوئے تھے کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو دو اشکال لازم آتے ہیں. ایک یہ کہ ایک ہی چیز پر جوہر اور عرض دونوں کا اطلاق ہوگا. دوسرا اشکال یہ تھا کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو ایک چیز کے اوپر دو مقولے صدق کریں گے، جوہر اور کیف، یا مثلا کم و کیف، اس قسم کے. یعنی جوہر بے عنوانی مثال ہے لیکن کیف نفسانی یہ مستقل رہے گا چونکہ علم کیف نفسانی ہے. اور ایک چیز پر دو مقولات متباینہ کا صدق کرنا جو ہے وہ محال ہے، پس وجود ذہنی کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کے جواب میں مختلف بزرگان وارد میدان ہوئے اور تقریباً 4 جواب دیے گئے. چونکہ پہلے 2 جواب جو تھے وہ گویا کے اشکال سے فرار تھا. مثلا مقولہ اضافہ کی جو بات ہوئی تھی، وجود ذہنی کا انکار کر دیا، یا شبح کا جو نظریہ تھا وہ جواب نہیں تھا، گویا کے اشکال سے فرار کرنا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو جواب تھے وہ خود وجود ذہنی کو مان کر جواب دے رہے تھے. ان میں سے 3 جواب ہم نے پڑھ لیے ہیں اور چوتھا جواب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ملا صدرہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کے اندر پچھلے درس میں تفصیلاً اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، فقط ہماری اس عبارت کی تطبیق رہتی ہے. خلاصہ کلام ملا صدرہ کے جواب کا یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ صورت کہ جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے وہ کس مقولے کے تحت مندرج ہے. اندراج کو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے لیے مہم جو چیز ہے وہ اندراج ہے. ایک مفہوم کا صدق کر جانا وہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے. ایک چیز پر 2 مقولے متباینہ اس وقت محال ہوں گے صدق کرنا کہ جب وہ شیء واحد مندرج ہو 2 مقولوں کے تحت، نہ کہ ایک چیز پر 2 مفہوم کا صدق کر جانا. مفہوم کم بھی صدق کرے، مفہوم کیف بھی صدق کرے. صدق میں ہماری مشکل نہیں ہے. مستشکل بھی جو اشکال کر رہا ہے وہ صدق کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز 2 مقولوں کے تحت مندرج ہو رہی ہے. اور اندراج کا معنی کیا تھا. اندراج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مفہوم مقولہ کا صدق کرنا، مثلا مفہوم کم صدق کرے اس کے اوپر، مفہوم جوہر صدق کرے اس کے اوپر. اور دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے اندراج میں وہ ترتب آثار مقولہ ہے. یعنی جس مقولے سے وہ شے ہے اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہوں. پس ایک تو مفہوم مقولہ صدق کرے اور دوسرا اس کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہوں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز مندرج ہے مقولہ فلاں کے تحت. درست ہے؟ مثلا خط اس وقت کم کے تحت مندرج ہوگا کہ جب مفہوم کم اس کے اوپر صدق کرے اور کم کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہوں. کم کے آثار کیا ہیں؟ کہ وہ انقسام پذیر ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے. پس اگر خط انقسام کو قبول کر رہا ہے اور مفہوم کم بھی اس کے اوپر صدق کر رہا ہے، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جو خط ہے، یہ شے جو بے نام خط ہے، یہ مندرج ہے مقولہ کم کے تحت.
فقط ایک مقولے کا صدق کر جانا کسی چیز کے اوپر وہ اندراج کا موجب نہیں بنتا. بس اشکال اس طریقے سے برطرف ہو جائے گا کہ وہ صورت کہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ ماہیت خارجیہ کے جو ہمارے ذہن کے اندر منتقل ہوتی ہے، اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے، لیکن اس کے آثار اس پر مترتب نہیں ہوتے. مفہوم کیف اس کے اوپر صدق کرتا ہے اور اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. بس یہاں پر چونکہ ایک چیز دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہے، پس مشکل پیش نہیں آئے گی. پہلی صورت میں مفہوم جوہر صدق کر رہا ہے لیکن اندراج نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہیں. اور دوسری صورت میں مفہوم کیف جو ہے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور اس کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں. مفہوم کیف کے آثار کیا ہیں؟ یطرد الجہل عن نفسہ، انسان کے نفس سے کیف کیا کرتا ہے؟ کیف نفسانی، علم جہل کو دور کرتا ہے. علم کا جہل کو دور کرنا یہ اس کے آثار خارجیہ میں سے ہے، اور علم خود کیا ہے؟ کیف نفسانی ہے. بس کیف نفسانی کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں چونکہ جہل کو برطرف کر رہا ہے، اور مفہوم کیف بھی صدق کر رہا ہے اس صورت ذہنیہ کے اوپر، چونکہ متقی بھی ذہن ہے، چونکہ نفس کے ساتھ قائم ہے، لہذا کیف نفسانی اس پر صدق کر رہا ہے. ملا صدرہ اس طریقے سے مشکلات کرتے ہیں کہ کیونکہ مفہوم جوہر جو صدق کر رہا ہے اس میں اندراج نہیں پایا جاتا، اور مفہوم کیف کے اندر جو ہے جو صدق کر رہا ہے اس کے اندر اندراج پایا جاتا ہے. اور مشکل تب پیش آتی کہ جب دو مقولے صدق کریں اور وہ چیز اس دونوں کے تحت کیا مندرج بھی ہو رہی ہو، تب لازم آتا کہ ایک شے دو مقولے متباین بے تمام ذاتے کے تحت مندرج ہو رہی ہے، اور یہ محال ہے. دوسری تبیین کیا ہے؟ یعنی اسی کا ادامہ اس تبیین کا کیا ہے؟ اندراج کہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فلانی شے مقولے کے تحت مندرج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ تو ہم نے جواب دیا کہ اگر دو مقولوں کے تحت شے مندرج ہو تب مشکل پیش آتی ہے، لیکن وجود ذہنی کے اندر ایک شے دو مقولوں کے تحت مندرج نہیں ہے. ایک مقولے کا فقط مفہوم صدق کر رہا ہے اور دوسرے مقولے کا مفہوم بھی صدق کر رہا ہے اور آثار بھی مترتب ہو رہا ہے. اندراج وہاں پر پایا جاتا ہے، بس مشکل پیش نہیں آتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اندراج ہمیں کب پتا چلے گا کہ فلانا جو مقولہ صدق کر رہا ہے فلانی شے کے اوپر، وہ شے اس مقولے کے تحت مندرج ہے بھی نہیں، ہے بھی یا نہیں؟ یہ ہمیں کب پتا چلے گا؟ ملا صدرہ کہتے ہیں حمل کی طرف نگاہ کی جائے گی. اگر مقولہ ایک شے کے اوپر بالحمل الاولی صدق کر رہا ہوگا تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ شے اس مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے، فقط مفہوم اس کا صدق کر رہا ہے اس شے کے اوپر. جیسا کہ ماہیت خارجیہ جب میرے ذہن کے اندر آئی، یعنی ماہیت انسان کو جب میں نے تعقل کیا، وہ ماہیت انسان جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے اس کے اوپر مفہوم جوہر صدق کرتا ہے، کیونکہ خارج میں اس کے اوپر جوہر اطلاق کرتا تھا. ماہیت انسان کی جب خارج میں تعریف کی جاتی ہے تو جوہر اس کے اندر شامل ہے اور اس کے آثار بھی ہیں اس کے اندر، لیکن جب میں اس کو ذہن میں تعقل کرتا ہوں تو مفہوم جوہر اس کے اوپر اطلاق کرتا ہے، لیکن جوہر کے آثار اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے. درست ہے؟ یہ حملے اولی ہو گیا. لیکن اگر ایک مقولہ ایک شے کے اوپر بالحمل شائع صدق کر رہا ہو تو اس مقولے کے آثار بھی اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہوں گے. چونکہ آثار مترتب ہو رہے ہیں پس ہم کہیں گے کہ یہ شے مندرج ہے مقولے کے تحت. درست ہے؟ مثلا اسی ماہیت انسانیہ کو کہ جو خارج میں موجود ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان جوہر بالحمل شائع، تو یہاں پر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا؟ ایک تو مفہوم جوہر اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور دوسرا اس کے آثار بھی مترتب ہیں، کیونکہ انسان جب جوہر ہے تو جوہر کی جو آثار ہوں گے وہ اس پر مترتب ہوں گے. جوہر کے آثار کیا ہیں؟
کہ یہ مستقل ہوتا ہے، موضوع کا محتاج نہیں ہوتا جب تحقق پیدا کرتا ہے، تو ماہیت انسان خارج میں ایسی ہے، بس اس کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں۔ بس اگر مقولہ بالحمل الشائع کسی ماہیت پر صدق کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ فلانی ماہیت فلانے مقولے کے تحت مندرج ہے، لیکن اگر بالحمل الاولی مقولہ صدق کرے ایک شے کے اوپر، ایک ماہیت کے اوپر، تو اس وقت کہیں گے کہ یہ مقولہ درست ہے، صدق کر رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ شے اس کے تحت مندرج نہیں ہے، بس مشکل برطرف ہو جاتی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ عبارت میں مزید وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الْمُتَأَلِّهِينَ فِي كُتُبِهِ، ایک جواب خود ملا صدرہ نے دیا ہے اپنی کتابوں میں، وہ جواب کیا ہے؟ وَهُوَ الْفَرْقُ فِي إِيجَابِ الْاندِرَاجِ بَيْنَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْحَمْلِ الشَّائِعِ، وہ کیا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ اندراج واجب ہے، اندراج کے ایجاب میں، یہ ایجاب کہاں؟ ایجاب میں فرق کریں کس کس کے درمیان؟ بین الحمل الاولی والحمل الشائع، وہ فرق آپ نے یہ دیکھنا ہے حمل اولی اور حمل شائع کے درمیان۔ کیسے؟ فثانی، اگر حمل شائع ہوا یوجبہ، وہ اندراج کا موجب بنے گا، دون الاول، اگر حمل اولی ہوا تو اندراج کا موجب نہیں بنے گا۔ بیان ذالک ان مجرد اخذ مفہوم جنسی او نوعی فی حد شیء وصدقہ علیہ لا یوجب اندراج ذالک الشیء تحت ذالک الجنس او النوع۔ کہتے ہیں کہ فقط مفہوم جنسی کا اخذ کر لینا یا اخذ ہو جانا، مفہوم جنسی کیا ہے؟ مثلا جسم جنس ہے، مفہوم جنسی یعنی آج اب انسان کی اجناس میں سے ایک جنس خود جسم ہے، بس مفہوم جنسی کا اخذ ہو جانا، یا جوہر خود کیا ہے؟ جنس الاجناس ہے، یہ بھی جنس ہے، مفہوم جنسی ہے، بس مفہوم جنس کا اخذ ہو جانا، اور نوعی یا مفہوم نوعی کا اخذ ہو جانا، جیسا کہ انسان ہے، مثلا آپ قضیہ بناتے ہیں کیا؟ زید انسان، زید کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو زید کا آپ جب پہچانوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زید ایسا انسان ہے، مثلا یوں بیان کریں گے، تو زید کی ماہیت کے اندر کیا چیز اخذ ہے؟ انسانیت اخذ ہے۔ بس ایک چیز کے اندر مفہوم جنسی کا اخذ ہو جانا یا مفہوم نوعی کا اخذ ہو جانا فی حد شیء، ایک شے کی تعریف کرنے میں اگر ایک چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر مفہوم جوہر آ رہا ہے، اس کے اندر مثلا مفہوم جسم آ رہا ہے، اس کے اندر نوع انسان آ رہی ہے، انسان کا مفہوم جو ہے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے، وصدق ہی الیہ، ایک تو یہ ہے کہ اخذ ہو رہی ہے تعریف میں، اور دوسرا یہ کہ وہ مفہوم اس کے اوپر صدق بھی کر رہا ہے، فقط اتنا ہو جانا، لا یوجب اندراج ذالک الشیء، یہ چیز موجب نہیں بنتی کہ وہ چیز کہ جس پر یہ مفہوم صدق کر رہا ہے وہ چیز مندرج ہو جائے تحت ذالک الجنس، اس جنس کے تحت، اب النوع یا اس نوع کے تحت۔ مثلا آپ کیا کرتے ہیں؟ انسان، آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق اور بالحمل الاولی، آپ کہتے ہیں اب مفہوم انسان پر صدق کر رہا ہے، مفہوم حیوان جو ہے اس پر صدق کر رہا ہے، مفہوم ناطق بھی انسان کے اوپر صدق کر رہا ہے، لیکن فقط صدق کر رہا ہے اور تعریف کے اندر اخذ ہو رہا ہے، آثار ذہن کے اندر تو مترتب نہیں ہوں گے حیوانیت و ناطقیت کے، انسان حیوانیت اور ناطقیت کے آثار خارج میں مترتب ہوں گے، تو اس وقت یہ حیوانیت اور ناطقیت کے تحت یہ انسان مندرج ہوگا کہ جب کیا ہو؟ یہ بالحمل الشائع ہمارے مد نظر ہو۔ بات واضح؟ پس مقولے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ایک مثال یہ نو دی، بل یتوقف الاندراج تحتہ علی ترتب آثار ذالک الجنس، اندراج متوقف ہے، اندراج کی تحت شے یعنی تحتہ یعنی تحت الجنس، یعنی ایک چیز کا مندرج ہو جانا تحت جنس یا تحت نوع،
हू की ज़मीर जिन्स या नौ की तरफ जाएगी। इंदिराज तहतल जिन्स या तहतल नौ मुतवक्किफ है किसके ऊपर? अला तरत्तुब आसार ज़ालिकल जिन्स, कि उस जिन्स के आसार इसके ऊपर मुतरत्तिब हों। अब नौ अल खारिजिया अला ज़ालिक शय, या नौ ए खारिजी के आसार मुतरत्तिब हों उस शय के ऊपर। अगर ये आसार मुतरत्तिब होंगे तब जाकर हम ये कहेंगे फलानी शय जो है उस मफहूम के तहत मुंदरिज है। फिर मिसाल देते हैं, वजाहत करते हैं मजीद। फमुजर्रद अखज़िल जौहर वल जिस्म मसलन फी हद्दिल इंसान, कहते हैं हम इंसान की तारीफ करना चाहते हैं, इंसान की तारीफ में जौहर और जिस्म को अख्ज़ करते हैं, चूंकि उसकी तारीफ में शामिल हैं ये, क्योंकि जिन्स हैं उसकी। हैसो क़ाल, मसलन ये कहा जाता है अल इंसानु जौहरुन जिस्मुन नामिन हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा नातिकुन। ये तारीफ हम करते हैं, ये तमाम मफाहिम अख्ज़ हैं इंसान की तारीफ के अंदर। ये फकत मफाहिम का सिद्क़ कर जाना इंसान पे और उसकी तारीफ में अख्ज़ हो जाना इन मफाहिम का, ला यूजिबु इंदिराजहु तहत मक़ूलतिल जौहर, ये चीज मूजिब नहीं बनती कि इंसान मुंदरिज है किसके तहत? तहतहु, यानी जौहर या जिस्म के तहत। मसलन दुरुस्त है, ये हु की ज़मीर इसकी तरफ पड़ा, तहत ना इंदिराजहु तहत मक़ूलतिल जौहर ओ जिन्सिल जिस्म, कि वो मुंदरिज हो जाए इंसान जौहर के मक़ूला के तहत या जिस्म के तहत जो कि जिन्स वाक़े हो रही है। हत्ता यकून मौजूदन ला फी मौजू, अब वो आसार बता रहे हैं कि जौहर का असर क्या था? यकून मौजूदन ला फी मौजूइन, कि जौहर जो होता है वो ऐसी माहियत को कहते हैं जो मौजूद तो होता है लेकिन मौजू का मोहताज नहीं होता। बेएतबार कौन ही जौहरान, इंसान मौजूद ला फिल मौजू तब होगा कि जब हम उसको जौहर के एतबार से निगाह करें, यानी जौहर को मद्देनजर रखें। व यकून बिहैस यसिहु अन युफरज़ फीहि अल अबआदुस सलासा, और इंसान और जिस्म के आसार क्या हैं कि जिस्म जो है अगर इसको हम जिस्म बेएतबार कौन ही जिस्मन, अगर हम जिस्म वाला एतबार करें, जिस्म के तहत इंसान को मुंदरिज करें, तो उसका मतलब क्या है कि इंसान सही है कि उसके अंदर हम अबआद सलासा को फर्ज कर सकें। अबआद सलासा क्या है? तूल, अर्ज और उम्क। तूल, अर्ज और उम्क हम फर्ज कर सकते हैं इंसान के अंदर। कब? कि जब इंसान जिस्म के तहत मुंदरिज हो। इंदिराज का क्या माना है? यानी जिस्म के आसार उस पर मुतरत्तिब हों। मफहूम इंसान तो ये असर नहीं रखता, क्योंकि तूल अर्ज उम्क नहीं रखता, क्योंकि अगर तूल अर्ज उम्क रखता होता तो फिर इंसान के बराबर मेरा ज़हन होना चाहिए था। हालांकि हम मफहूम तसव्वुर करते हैं इंसान का, लेकिन उसका तूल अर्ज उम्क हमारे जहन में नहीं आता, लेकिन खारिज में वो आसार रखते हैं। बस देखें, हत्ता ये कहना ला यूजिबु इंदिराजहु, ये फकत जौहर और जिस्म को अख्ज़ कर देना मूजिब नहीं बनता कि इंसान मुंदरिज हो जाए मक़ूला जौहर और मक़ूला या जिनसे जिस्म के तहत मुंदरिज हो जाए, ताकि उस पर ये आसार मुतरत्तिब हों, क्योंकि मुंदरिज नहीं है, बस ये आसार भी मुतरत्तिब नहीं होंगे। वह कज़ा, कहते हैं इस तरह मिसालें बनाते जाएं आप। वकज़ा, अब दूसरी मिसाल देते हैं, ये तो थी जौहर की मिसाल, अब आते हैं कम की मिसाल देते हैं। वकज़ा मुजर्रद अख़ज़िल कम वल इत्तिसाल फ़ी हद्द सतह, यानी ये हम जाकर आगे पढ़ेंगे जब हम मक़ूलात अशर की बात पढ़ेंगे मरहला शिशुम के अंदर जाकर छठे मरहले में, तो वहां पर ये सारा तफसील के साथ आएगा। जौहर किसे कहते हैं, जौहर की अक़साम कितनी हैं, अरज़ किसे कहते हैं, अरज़ के नीचे कितने मसादीक़ हैं, कम किसे कहते हैं, कैफ किसे कहते हैं, कम की कितनी किस्में हैं, सत की कितनी, ये सत किसके तहत दाखिल होती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लिहाजा यहां फ़कत इबारत की तोज़ी की हद तक फ़कत बयान करते हैं। उसमें फरमाते हैं कि कम किसे कहते हैं, कम मिक़दार, मसलन मक़ूला कम, मक़ूला कम, इसकी जब तारीफ की जाती है सतह की, क्योंकि कम की फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। कम जो है वो उसके खत जो है वो भी कम कहलाता है, सतह जो है वो भी कम कहलाता है। उसके बाद अदद जो है वो भी कम के तहत दाखिल होता है। ठीक है, कम की दो किस्में करते हैं, कम या मुत्तसिल होगा या
मुनफसिल होगा। कम में मुनफसिल किसे कहते हैं कि वो कम के जो हद मुश्तरक ना रखता हो, उसे कम में मुनफसिल कहते हैं। मसलन अदद, अदद को आप लिहाज में पहले कम में मुत्तसिल समझा दूं ताकि कम में मुनफसिल समझना आसान हो जाएगा। कम में मुत्तसिल किसे कहते हैं? कम में मुत्तसिल उस कम को कहा जाता है कि जो हद मुश्तरक रखता है। मसलन आप खत को मद्देनजर रखें, खत को एक लाइन खींचें खत के उन्वान से, अगरचे ये खत फलसफी नहीं है। खत जब फलसफे में जिक्र किया जाता है वो ये लाइन वाला खत नहीं होता, वो और मुराद होती है कि वहां जाकर हम मुफस्सल इसको पढ़ेंगे। बहरहाल लेकिन मिसाल के लिए, मतलब वाज़ होने के लिए हम अभी इस खत हिस्सी से इस्तेफादा करते हैं। आप एक लाइन खींचते हैं खत के उन्वान से, ये जो आपके सामने खत मौजूद है, आप किसी नुक्ते के ऊपर भी हाथ रख दें, किसी नुक्ते के ऊपर भी हाथ रखें, तो वो नुक्ता जो बनेगा वो अगले खत के लिए आगाज बन रहा होगा और पिछले खत के लिए इंतहा बन रहा होगा। यानी ये वाला जिसके ऊपर आपने उंगली रखी हुई है, ये हद मुश्तरक है बाद वाले खत के लिए और कबल वाले खत के लिए। बस कम में मुत्तसिल उस कम को कहते हैं कि जो क्या रखे, हद मुश्तरक रखे, इसको कहते हैं कम में मुत्तसिल। और कम में मुनफसिल किसे कहते हैं कि जो हद मुश्तरक ना रखे। इस तरह की, जिस तरह के खत की मिसाल आपको दी है। अदद जो है, मसलन अदद 3, ये आया यूं कह सकते हैं कि अदद 3 अदद 2 की इंतहा है और अदद 4 की इब्तिदा है। नहीं कह सकते, क्यों? अदद सारे जुदा जुदा हैं, आपस में इनका इंतहा व इब्तिदा वाला कोई खत वाली इर्तिबात नहीं है। एक एक का आप इजाफा करते रहें तो यानी हर अदद का एक अपना खास मर्तबा है और वहीं पर मुंतही हो जाता है। ऐसा नहीं कि इदामा जो है वो होता है, फिर आप कहेंगे यहां खत्म हो गया, यहां से आगे शुरू हो रहा है। बस एक होता है कम में मुनफसिल, एक होता है कम में मुत्तसिल। फिर इस कम में मुत्तसिल की दो किस्में की जाती हैं, कम में मुत्तसिल कार और कम में मुत्तसिल गैर कार। कम में मुत्तसिल कार किसे कहते हैं? कम में मुत्तसिल कार उस कम को कहा जाता है कि जिसके अज्जा एक दूसरे के साथ मौजूद हो सकते हों। दुरुस्त है? मसलन आप अगर खत खींचते हैं, दुरुस्त है, तो अब इस खत के जो अज्जा हैं, ऐसा नहीं है कि खत का अगर पहला जुज खत्म होगा तो दूसरा जुज आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, खत का पहला जुज भी रहेगा, उसके साथ दूसरा जुज भी आएगा, उसके साथ तीसरा जुज भी आएगा, और तमाम अज्जा जो है एक दूसरे के साथ हैं। बस जब तमाम अज्जा एक दूसरे के साथ जम हो सकते हैं, इसको कहते हैं कम में मुत्तसिल कार। लेकिन कम में मुत्तसिल गैर कार किसे कहेंगे? कि जब तक पहला जुज नहीं जाएगा उस वक्त तक दूसरा जुज आ ही नहीं सकता। मसलन जमाना, जमाना के जो अज्जा हैं वो कैसे हैं? वो गैर कार हैं। यानी कार का मतलब यह है कि वो इस्तिकरार नहीं है उनके अंदर, बल्कि क्या है, तब्दीली है उनके अंदर। यानी क्या मतलब, हफ्ता जब तक नहीं जाएगा इतवार नहीं आएगा, और इतवार जब तक नहीं जाएगा उस वक्त तक सोमवार नहीं आएगा। बस ये अज्जा एक दूसरे के साथ जम नहीं हो सकते, एक जुज का आना पहले जुज के जाने पर मौकूफ है। बस अगर इस किस्म का राबता हो उसे कहते हैं कम में मुत्तसिल गैर कार। लेकिन अगर अज्जा का राबता इस तरीके से ना हो, बल्कि दो जुज एक साथ मिल सकते हों, चंद जो अज्जा जो हैं वो एक साथ मिल के जमा हो सकते हों, उनको कहा जाता है ये कम में मुत्तसिल कार है। कार यानी क्या मतलब, इनकी अज्जा में इस्तिकरार मौजूद है, ये तब्दीली इनके अंदर नहीं आएगी। बात वाज़ेह हुई है? बस ये ज़हन के अंदर रखें। अब आते हैं इबारत के अंदर, कि इबारत वाज़ेह हो जाए। कहते हैं कि वकज़ा मुजर्रद अख़ज़िल कम वल इत्तिसाल फ़ी हद्द सत्ह। कहते हैं इसी तरीके से है कि अगर आप सत्ह की तारीफ करते हैं तो सत्ह की तारीफ में कम को भी आप लेंगे और क्या लेंगे, इत्तिसाल को भी लेंगे। यानी सत्ह की आप तारीफ क्या करेंगे, हैसो क़ाल, यूं कहेंगे अस्सत्हु कम्मुन मुत्तसिलुन क़ारुन
और क्या है मुनक़सिमुन फी जिहतैन। जिहतैन से क्या मुराद है, यानी जिस्म 3 जिहतों में तकसीम होता है, तूल, अर्ज, उम्क, दुरुस्त। और सतह 2 जिहतों में तकसीम होता है, तूल और अर्ज के अंदर, उमुक सतह के अंदर मौजूद नहीं होता। और खत जो है वो एक जिहत में तकसीम होता है, फकत तूल के अंदर, ना वो अर्ज रखता है ना ही वो उम्क रखता है। बात वाज़ेह हुई है। बस सत की तारीफ हो गई, कमुन, मुत्तसिलुन, कारुन, मुनक़सिमुन फी जिहतैन। अब सत की तारीफ में इतने मफाहिम अख्ज़ हैं, कम अख्ज़ है, इत्तिसाल अख्ज़ है, कारुजात होना जो है वो अख्ज़ है। कहते हैं ये तारीफ के अंदर इन मफाहिम का अख्ज़ हो जाना, ला यूजिबु इंदिराजहु तहतल कम, ये मूजिब नहीं बनेगा कि सत मुंदरिज हो जाए कम और मुत्तसिल के तहत। मसलन इंदिराज यहां पर तहक़्क़ुक़ पैदा नहीं कर सकता, हत्ता ताकि कहा जाए कि यकूनु काबिलन लिल इनक़िसाम बिज़ातिही मिन जिहति अन्नहु कम्मुन। कम के असर क्या है, कम का असर यह है कि हर वो चीज जो कम रखती हो वो मुनक़सिम होती है, उसके अंदर सलाहियत होती है तकसीम रखने की। यानी हर वो चीज जो तकसीम होती है समझ जाएं कि वो कम है, यानी अपने अंदर कम रखती है। बस मिन जिहत अन्नहु कम्मुन, इस एतबार से कि वो कम है, वो क्या है, वो काबिल लिल इनक़िसाम है, इनक़िसाम को कबूल करता है, तकसीम को कबूल करता है। व मुश्तमिलन अलल फ़स्लिल मुश्तरक, और फ़स्ल मुश्तरक पर वो क्या हद मुश्तरक के ऊपर मुश्तमिल होगा। क्यों, मिन जिहत अन्नहु मुत्तसिलुन, क्योंकि हमने ये तारीफ की है कम मुत्तसिल की। कम मुत्तसिल उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आप हद मुश्तरक को फर्ज कर सकते हो। बस मुत्तसिल होने का असर यह है कि वो चीज के जो इसके तहत मुंदरिज है वो हद मुश्तरक रखती हो। कहते हैं ये आसार मुतरत्तिब नहीं हो सकते फकत अगर हम तारीफ करें उसकी, बिल हमलिल अव्वली, मसलन उसको मुराद ले लें कि जो बाद में इसकी वजाहत करेंगे। वलौकाना, अब एक इश्काल का मिशन जो कहते हैं क्या मुश्किल पेश आती है कि अगर फकत एक मफहूम उसके ऊपर सिद्क आ जाए, एक मफहूम तारीफ करते हुए उसकी तारीफ में अख्ज़ हो जाए तो इंदिराज तहक़्क़ुक़ पैदा कर जाए, क्या मुश्किल पेश होती है। कहते हैं अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि फकत मफहूम का सिद्क कर जाना काफी है इंदिराज के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं शरीके बारी है, तो इसका नतीजा क्या होना चाहिए कि शरीके बारी मुंदरिज होना चाहिए शरीके बारी के तहत। यानी क्या मुराद मुंदरिज होना चाहिए, यानी शरीके बारी का एक फर्द होना चाहिए कि जो इस मफहूम के तहत मुंदरिज हो, और शरीके बारी का फर्द है नहीं है, इश्काल लाजिम आएगा। या मैं कहता हूं अल अदमुल मुतलक अदमुल मुतलक, अगर फकत मफहूम का सिद्क कर जाना काफी होता है इंदिराज के लिए, तो यहां अदम मुतलक के ऊपर अदम मुतलक का इतलाक हो रहा है, सिद्क कर रहा है अदम मुतलक इसके ऊपर, तो इसका मतलब है यहां भी इंदिराज पाया जाना चाहिए, हालांकि अदम कोई चीज नहीं है ताकि यहां पर इंदिराज तहक़्क़ुक़ पैदा करे। बात वाज़ेह हुई है। तो ये एतराज़ात वारिद होंगे, तो इस इश्काल का जवाब देते हैं। वलो काना मुजर्रदु सिद्क़ मफ़हूमिन अला शैइन मूजिबन लिल इंदिराज, अगर फकत मफहूम का एक शय पर सिद्क कर जाना मूजिब बने इंदिराज का, लकाना कुल्लु मफहूमिन कुल्लियन फर्दन लिनफ्से, तो हर मफहूम कुल्ली अपना ही फर्द बनेगा। अल इंसानो इंसानुन, इंसान इंसान का फर्द बन जाएगा। अल कुल्लियो कुल्लियुन, कुल्ली कुल्ली का फर्द बन जाएगा। लिसिद्क़िही बिल हमलिल अव्वली अला नफ्से, क्योंकि मफहूम कुल्ली हमले अव्वली के एतबार से अपने ऊपर सिद्क करती है। इंसान मफहूम कुल्ली है, हमले अव्वली के एतबार से आप कह सकते हैं अल इंसानु इंसानुन। मफहूम कुल्ली खुद मफहूम कुल्ली है, इसको आप कह सकते हैं हमले अव्वली के एतबार से अल कुल्लियो कुल्लियुन। फल इंदिराजो यतवक्कफु अला तरत्तुबिल आसार, हालांकि बस नतीजा ये निकला, ये इश्काल का जवाब हो गया, इश्काल हो गया। अब नतीजा लेते हैं। बस मालूम हो गया कि इंदिराज वहां होगा कि जहां तरत्तुब आसार मौजूद होंगे। व मालूम अन्न तरत्तुबल आसार
इन्नमा यकूनु फिल वजूदिल खारिजी दूना अज़्ज़हनी। और तरत्तुब आसार मालूम है, यकीन है इस बात का हमें कि ये खारिजी वजूद पर आसार मुतरत्तिब होते हैं, ना कि ज़हनी वजूद के ऊपर। फतबय्यना, चूंकि मतलब आसान है, सारा बयान हो चुका है, तो इसको बेहाज़ल बयान तक जो है वो तत्बीक कर लेते हैं, आगे नया मतलब होगा। फतबय्यन, तकरार है, अन्ना सूरत ज़हनिया गैर मुंदरजतिन। ये तो सारी मिसालें थी, अब आते हैं अपने वजूद ज़हनी के अंदर, इसको तत्बीक करते हैं कि अन्ना सूरत ज़हनिया गैर मुंदरजतिन तहत मा यसदुक़ु अलैहा मिनल मक़ूलात। सूरत ज़हनिया मुंदरज नहीं होगी उस मकूले के तहत के जो उसके ऊपर सिद्क़ कर रहा होगा। क्यों? ले अदम तरत्तुब आसारिहा अलैहा, क्योंकि फकत सिद्क करना काफी नहीं है, उसके ऊपर आसार उसके मुतरत्तिब नहीं हो रहे हैं। यानी मफहूम जोहर अगरचे दुरुस्त है कि उस सिद्क कर रहा है सूरत ज़हनिया के ऊपर, लेकिन चूंकि सूरत ज़हनी मफहूम जोहर के आसार नहीं रखती, बस ये उसके तहत मुंदरज भी नहीं है। लकिन सूरत ज़हनिया इन्नमा ला ततरत्तब अलैहा आसारुहल खारिजी मिन हैसु हिया वजूदुन मकीसुन इला मा बेहिज़ाइहा मिनल वजूदुल खारिजी। फरमाते हैं कि अगर हम वजूद ज़हनी को हिकायत के एतबार से देखें, ये मैं पहले भी तोज़ी दे चुका हूं, दोबारा तकरार करता हूं कि आप सूरत ज़हनी जो आपके ज़हन के अंदर आई है, इसकी दो हैसियतें हैं, दो तरीके से हम एतबार कर सकते हैं। एक एतबार इसका यह है कि मैं इस सूरत को इस लिहाज से देख रहा हूं कि यह काशिफ है खारिज से, यानी मैंने आपको तअक्कुल किया अपने जहन में, आपकी सूरत मेरे जहन में आ गई है। अब मैं एक मर्तबा आपकी सूरत को इस लिहाज से देख रहा हूं कि यह सूरत आपसे हिकायत कर रही है, और मैं इस सूरत के जरिए क्या कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं। यानी एक मर्तबा मैं सूरत ज़हनी को उसकी हिकायत की हैसियत से देख रहा हूं, और दूसरा एतबार क्या है इसके अंदर कि मेरी तवज्जो हिकायत की तरफ नहीं है, खुद उस सूरत की तरफ है कि इस सूरत ने आकर क्या किया है, मेरे नफ्स के अंदर एक तब्दीली पैदा कर दी है। पहले मुझे आपका इल्म नहीं था, इस सूरत के आने के बाद मुझे क्या हो गया, आपका इल्म हासिल हो गया। तो मैं इस वक्त सूरत को बेदूने हिकायत मुस्तकिलन निगाह कर रहा हूं, ये एक उसकी हैसियत है। फरमाते हैं कि अगर हम सूरत ज़हनिया को उसकी हिकायत के एतबार से निगाह करें तो इस सूरत ज़हनिया पर आसार मुतरत्तिब नहीं होते। मतलब है, बस सूरत ज़हनिया को अगर हाकवियत के उन्वान से देखें तो इस पर मफहूम तो सिद्क हो सकता है, लेकिन इस पर आसार मुतरत्तिब नहीं हो सकते। यानी मैंने जो आपकी सूरत दर्क की है और आपकी सूरत के जरिए मैं आपको देख रहा हूं, तो इस वक्त ये सूरत, इस सूरत के ऊपर आपका मफहूम तो सिद्क कर रहा है कि ये सूरत ज़हनिया ज़ैद की है, लेकिन इस सूरत ज़हनिया के ऊपर उसके आसार मुतरत्तिब नहीं हो रहे, बस ये मुंदरिज भी उसके तहत नहीं है। बस अगर हाकवियत के एतबार से देखा जाए तो सूरत ज़हनिया के ऊपर आसार मुतरत्तिब नहीं होते, और अगर हम सूरत ज़हनिया को हिकायत के एतबार से देखें तो उसको कहा जाता है वजूद ज़हनी। यह हतमन ज़हन के अंदर रखना है। बहुत सारी मुश्किलात बाब मारिफत में आपकी हल होती हैं इसके जरिए। बस वजूद ज़हनी की इस्तिलाह कहां इस्तेमाल होती है कि जहां मैं सूरत ज़हनिया को उसकी हिकायत के एतबार से निगाह कर रहा हूं, उस वक्त कहेंगे कि यह वजूद ज़हनी है। लेकिन अगर मैं इस सूरत ज़हनिया को मुस्तकिल तौर पर देख रहा हूं, इस एतबार से देख रहा हूं कि इस सूरत ने मेरे नफ्स में तब्दीली ईजाद कर दी है, मैं इस एतबार से देख रहा हूं कि इस सूरत ने आके जहल को बरतरफ कर दिया है मुझसे, मुस्तकिलन निगाह कर रहा हूं, तो यही सूरत ज़हनिया इल्म कहलाएगी, न कि वजूद ज़हनी।
बता दें, बस वजूद ज़हनी और इल्म एक ही चीज का नाम है, लेकिन एतबार मुख्तलिफ हैं। अगर आप हाकवियत की निगाह से देखेंगे तो उसको आप वजूद ज़हनी कहेंगे, और अगर आप उसको आसार खारजिया के एतबार से देखेंगे तो उसको आप इल्म कहेंगे। बात वाज़ेह हो गई। मुल्ला सज़राब यहां ये फरमाते हैं लाकिन सूरत ज़हनिया इन्नमा ला ततरत्तब अलैहा आसारुल मालूमिल खारजी, सूरत ज़हनिया पर मालूम खारजी के आसार मुतरत्तिब नहीं होते। कब? मिन हैसु हिया मौजूदुन मकीसुन इला मा बिहिज़ाइहा मिनल वजूदिल खारजी, कि जब हम उसको एक ऐसा वजूद माने कि जिसको हमने मुकाइसा किया हो, किसकी निस्बत? वजूद खारजी की निस्बत, यानी हम हिकायत के एतबार से निगाह कर रहे हैं। इलामा बेहिज़ाइहा यानी उसकी तरफ मुकायसा करें कि जो उसके मुकाबिल में है। कौन है उसके मुकाबिल में? मिन बयानिया है, मिनल वजूदिल खारजी, यानी वजूद खारजी की निस्बत कयास करके हम उसको देख रहे हों। यानी खुलासा उसका यह कि हम उसको हिकायत के एतबार से देख रहे हों। लेकिन अम्मा मिन हैसु इन्नहा हासिलतुन लिन्नफ्स, लेकिन इस एतबार से देखें कि यह सूरत ज़हनिया मेरे नफ्स के लिए हासिल हुई है, हालन और मलकतन। अब ये चाहे हाल के एतबार से हासिल हुई है या मलका के एतबार से, इसमें फर्क है। मसलन तकवा को अगर एक मर्तबा आप देखें, तकवा इंसान के अंदर बाज औकात हालत होती है, बाज औकात मलका होता है। यानी एक मर्तबा इंसान गुनाहों से बचता है, लेकिन कभी कभी ये उसके अंदर हालत तारी होती है। या मसलन तकवे से हटकर अगर उससे बालातर दर्जा मुराद ले लें, मसलन हर इंसान ने इसको तजर्बा किया हुआ है। मसलन बाज औकात इंसान के अंदर इतनी लताफत ईजाद होती है, मसलन शब जुमा को अगर हरम में मौजूद हो के कभी उसने उसको एहसास नहीं किया होता, लेकिन आम दिनों में उसके अंदर ये वाली सूरत मौजूद नहीं होती। ये वाली सूरत जो कभी आए कभी ना आए, इसको कहते हैं ये हाल है। लेकिन अगर वो दाइमी रहे तो उसको कहेंगे ये मलका है। तो फरमाते हैं कि अगर हम सूरत ज़हनिया को इस एतबार से देखें कि वो नफ्स के लिए हासिल हुआ है, या तो हाल के एतबार से या मलके के एतबार से, फर्क नहीं रखता, फकत हमने देखना है कि ये नफ्स के लिए हासिल हो चुका है। ततरदु अनहल जहल, और ये क्या कर रहा है? जहल को बरतरफ कर रही है ये सूरत ज़हनिया। फाहिया, पस इस एतबार से ये सूरत ज़हनिया क्या कहलाएगी? वजूदुन खारजी, इल्म वजूद खारजी बन जाएगा, पास सूरत ज़हनी वजूद खारजी बन जाएगी। मौजूदुन लिन नफ्स, नफ्स के लिए मौजूद होगा, नाइतुन लहा, और ये वजूद खारजी यानी इल्म नाइत बनेगा किसका? नफ्स का। इल्म सिफत बन जाती है नफ्स के लिए। यस्दुक़ु अलैहा हद्दुल कैफ, इस वक्त इसके ऊपर कैफ इतलाक करेगा, लेकिन बिल हमल शाए के एतबार से ये बिल कैफ नफसानी बनेगा। और कैफ नफसानी किसे कहते हैं? वह हुआ अन्नहु, कैफ की तारीफ कर रहे हैं, अरजुन ला यक़बलु क़िस्मतन वला निस्बतन लिज़ाते। इंशाअल्लाह वहां जाकर तोज़ी पढ़ेंगे मक़ूलात अश्र में कि कैफ की तारीफ ये है, कैफ उस माहियत को कहा जाता है जो ना तो किस्मत को कबूल करती है कम की तरह, जिसका कम जो है वो आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं उसको, और ना ही जो है वो निस्बत को जो है वो कबूल करती है इसको। फहुवा मुंदरजुन बिज़्ज़ात तहत मक़ूलतिल कैफ, पस ये क्या है? बिज़्ज़ात मक़ूला कैफ के तहत दाखिल होगा। कब? कि जब हम उसको क्या कर रहे हों? हाकवियत के एतबार से नहीं बल्कि मुस्तकिल एतबार से देख रहे हो, जब वो इल्म के एतबार से उसको देख रहे हों। व इल्लम यकुन मिन जहत कौनही वजूदन ज़हनियन मक़ीसन इलल खारिज दाखिलन तहत शैइन मिनल मक़ूलात, अगरचे यही वजूद कि जिस पर आसार मुतरत्तिब हो रहे हैं, जो जहल को बरतरफ कर रहा है, जो इल्म बन चुका है, अगरचे यही वजूद इस एतबार से कि ये वजूद ज़हनी है और इसको खारिज के एतबार से मुकायसा किया जा रहा है, इस एतबार से ये किसी भी मक़ूला के तहत दाखिल नहीं है। व इल्लम यकुन दाखिलन तहत शैइन मिन मक़ूलात, अगरचे ये किसी भी मक़ूले के तहत दाखिल नहीं है। कब? मिन जहत कौनिही वजूदन ज़हनिया, इस एतबार से कि जब हम उसको वजूद ज़हनी के एतबार से देखें, मक़ीसन इलल खारिज के जब हम उसको हिकायत के एतबार से देखें कि ये सूरत ज़हनिया हिकायत कर रही है अपने
معلوم خارجی سے، اس اعتبار سے وہ کسی مقولے کے تحت داخل نہیں ہوگا. لعدم ترتب الاثار، کیونکہ وجود ذہنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے. اللہم الا تحت مقولۃ الکیف بالعرض، ہاں آپ وجود ذہنی کو کیف کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کیف بالمجاز ہوگا، بالعرض ہوگا، بالحقیقت نہیں کہلائے گا. پس نتیجہ یہ نکلا مقولہ جوہر اگر صدق کر رہا ہے وجود ذہنی پر تو وہ فقط صدق کی حد تک ہے، اور مقولہ کیف جو صدق کر رہا ہے وہ صدق کے ساتھ ساتھ آثار خارجی بھی رکھتا ہے، پس اندراج وہاں موجود ہے. پس ایک ہی چیز، دو مقولے اس پر صدق تو کر رہے ہیں لیکن اختلاف حمل رکھتے ہیں. جوہر ہے بالحمل الاولی، کیف ہے بالحمل الشائع، پس اشکال وارد نہیں ہوتا، وجود ذہنی ثابت ہے اور کوئی بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ آخری اور نہائی جواب تھا اور آج بھی یہ قابل قبول ہے. اس جواب کے ذریعے ہم وجود ذہنی کے قائل ہو سکتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے اب وہ یہ کہ یہ جو ملا صدرہ نے جواب دیا ہے، ہادی سبزواری کہ جو ملا صدرہ کے بعد آئے ہیں اور بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں، وہ ملا صدرہ کے اس جواب کو قبول نہیں کرتے، لیکن علامہ ان کے جواب اعتراض کو ذکر کر کے ان کو رد کرتے ہیں، پھر بعد والے اعتراضات میں وارد ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.